Hello, assalamu alaikum all. We will wait for a few minutes, like 2-3 minutes. We will wait to people join. थोड़ा और इंतजार करते हैं, कुछ और टीचर्स ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो ज्वाइन हो सकते हैं. Hello. Let me text a message on our group so people can get online. Just a reminder. Assalamu alaikum everyone. This is Aftab. As I can see that there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 members are here. I have already text on the group meeting ID. If any of your associate, any of your colleague is still finding it difficult to get online, then just please guide them or share the meeting ID with them, so they can also get benefit from the same. We will wait for 2 more minutes. Hello, Assalamualaikum. Walaikum Assalam. This is Uzair, sir. Sir, I couldn't find the account and backup in my phone. Can you help me, sir? You said in your video that account and backup, you have to create an account by going into the account and backup. But in my phone,
It's not showing any account and backup in the settings. In the you're talking about Google Classroom, sir, right? Yeah, Google Classroom, yes, sir. Okay, so do you have a Gmail account? Yeah, I have my Gmail account. Okay, no worries. I'll just explain everything to you in the when we will start. Okay. I'll explain it to you in the video. Okay. All right, so let's start with this session. Assalamu alaikum to all. Once again, I welcome you all to this session, and I really thank you all that you have come online in a on a short notice. By the way, कल रात में डिस्कशन हुआ था और सुबह में आज डिसाइड किया कि जूम के ऊपर करना है हमें मीटिंग. तो I thank all of you you have joined on such a short notice. I hope you all are all safe and healthy at your homes. So let's start with this. So जैसे हमने डिस्कस किया था कि गूगल क्लासरूम और जूम ऐप इसका इस्तेमाल करके आप बच्चों के साथ टच में रह सकते हैं बिकॉज वेकेशंस चल रहे हैं और इवन आफ्टर द वेकेशंस when the next academic year will start, we will have the opportunity to connect with the students via this application, via this app. So I'll tell you one by one to use the both applications, both apps, Google Classroom as well as Zoom meetings. All right. So I'm going to share my screen so you can see my mobile screen as well as my desktop screen. All right. So the people who have the desktop or laptops, they can also access the both apps through that through a laptop or desktop. Or अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो definitely from the smartphone you can access this software, these both applications. Let me start with the mobile application, right? So first of all we will see, I hope you all are you all can see my mobile screen, right? So No, sir. you can text me if you are not seeing the mobile, you are not seeing the screen. Are you able to see my mobile screen? Yeah, sir. Okay. All right, so as you know, we have I have sent you a video of how to sign in with the Google Classroom. So click on Google Classroom. I'll just show it to you again by uninstalling the software. The people who are not able to create Google Classroom accounts, just for them. All right, so you have to go on Play Store, and you have to go on Play Store and click on install. Search for Google Classroom and click on install. As you install, जैसे आप regular applications को install करते हैं स्मार्टफोन के अंदर, उसी तरीके से Google Classroom को install करना है. And be patient if it takes time, you know, to download or to you, because जैसे आपको पता है कि इंटरनेट का यूसेज बहुत बड़ा है ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, और बेसिकली इन दो एप्लीकेशंस का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी तो, गूगल क्लासरूम और जूम का, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ने, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने अपील की है कि वो टीचर्स को अपील की है कि लेसन्स जो है वो आपके इन दोनों एप्लीकेशंस के थ्रू या फिर घर बैठे बच्चों को सिखाए पढ़ाए. तो इन दोनों एप्लीकेशंस पे थोड़ा सा ज़्यादा लोड है फिलहाल, इसलिए गूगल क्लासरूम ने असदुल्ला खान स्कूल कैंपस, सोलापुर कैंपस का जो रिक्वेस्ट था स्कूल अकाउंट के लिए, वो अभी भी होल्ड पे रखा है. एल्स वी कुड आई कुड गिव यू डोमेन नेम ईमेल एड्रेसेस, फॉर एग्जांपल aftab@drasadullah.khanschool.org, ऐसे वाले ईमेल एड्रेसेस, डोमेन नेम ईमेल एड्रेसेस मैं आपको दे पाता, बट ड्यू टू हेवी रिक्वायरमेंट
from every school. Google is not able to do that right now. All right. So ओपन करना है इसको गूगल ऐप को और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है जल्दी से, और इसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट्स दिखाएगा। अभी ये अकाउंट्स आई थिंक के सभी को दिखा रहा होगा। अगर किसी को नहीं दिखा रहा है तो नीचे ऐड अकाउंट का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करना है। मैं करके बताता हूँ आपको। ऐड अकाउंट, अगर यहाँ पे किसी अकाउंट नहीं दिखा रहा है तो आपको आपका जो पर्सनल ईमेल एड्रेस है यहाँ पे इंसर्ट करना है, और उसके बाद आपको आपका पासवर्ड इंसर्ट करना है नेक्स्ट करके, और फिर आप जो है वो साइन इन हो जाएंगे। आई होप दैट yes sir. Excuse me, sir. Sir, what about you told that your name should be there, and you have to create that Asadullah Khan English, that is school.org, your first name. Yes, so yes. that is creating a problem because we cannot add that things. So we can use our regular accounts there. Yes. I was about to tell you that because as I told you earlier कि Google Classroom जो एजुकेशन वर्जन है स्कूल्स के लिए रहता है, तो गूगल को हमने रिक्वेस्ट किया था, तो दे हैव गिवन अस लाइक 10 अकाउंट्स व्हिच इज ऑलरेडी बीन यूज्ड। सो नया अकाउंट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने पर्सनल जीमेल अकाउंट से लॉग इन करें तो भी चलेगा, नॉट एन इशू। ओके, थैंक्स अ लॉट सर। तो मैं आपका जो भी अकाउंट रहेगा जीमेल का वो सिलेक्ट करके स्टार्ट करना है। आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ब्लैंक दिखाई देगा अभी फिलहाल तो आपका। और मेरे को जैसे आइडिया है कि बहुत सारे टीचर्स ऑलरेडी गूगल क्लासरूम को और कुछ टीचर्स जूम एप्लीकेशंस को भी यूज कर रहे हैं, सो दैट इज अ गुड थिंग। तो जल्दी से बताते हैं कि किस तरीके से आपको, पहले तो देखिए जस्ट अ सेकंड, आपको I hope you can see the screen now, notepad. Yeah. So आप देख सकते हैं कि गूगल क्लासरूम के अंदर आपको पहले तो क्रिएट क्लास करना है, क्लासेस क्रिएट करना है। उसके बाद क्लास के लिए, स्पेसिफिक क्लास के लिए टॉपिक्स क्रिएट करना है। उसके बाद उस टॉपिक के अंदर जो है वो मटेरियल क्रिएट करना है, फिर उसके साथ में असाइनमेंट, टेस्ट और लाइव क्लासेस, ये सारी चीजों को क्रिएट करना है। तो इस हायरार्की को जो है वो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से करना है, नहीं तो बाद में जो है वो कभी-कभी कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे असाइनमेंट क्रिएट किया और कहाँ पे टेस्ट क्रिएट किए। तो जब भी आप असाइनमेंट को असाइन कर रहे हो स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, तो उसका हमको ख्याल रखना है बेसिकली। So यहाँ पे हमको ज्वाइन क्लास पे सॉरी प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है और क्रिएट क्लास करना है। अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखाएगा बिकॉज ये अकाउंट जो है वो जी सूट फॉर एजुकेशन का नहीं है, तो ये एक नोटिफिकेशन दिखा रहा है। सो यू जस्ट हैव टू चेक मार्क एंड देन कंटिन्यू। क्लास नेम, I recommend you start with your class itself, for example fourth standard, for example English। उसके बाद सेक्शन डालेगा प्राइमरी। अगर आपके पास एक डिवीजन है तो हर एक डिवीजन के लिए आप अलग अलग क्लासरूम्स बना सकते हो। तो फर्स्ट क्लासरूम है तो क्लासरूम 01 और क्लासरूम ए, डिवीजन ए। उसके बाद नीचे सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, एंड देन sorry then click on create class। So in a non-education account, in your personal account, you can create at least 30 classes, 30 classrooms in your Google account. So I think that is more than enough, and you will get 30 GB of Google Drive support. So whatever contents you are going to upload, you can use it until like 30 GB. So this is how it is looking like. Menu, classes,
डोरमेट गिरा है नीचे। कौन सा बेटा? ऐसी एक है तो काम है साथ। All right, I have muted all the participants to avoid chaos. All right, so if you have any questions, you can just send a message via chat box. You can see on your screen there is a message. There is a chat box, so you can use that one. All right, so yeah, so we were seeing this one, classes. You have created a class. Now click on the class एंड नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शेयर विथ योर क्लास का ऑप्शन है। मतलब कि समझ लीजिए आपका नोटिफिकेशन बोर्ड है, आपका नोटिस बोर्ड है, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मैसेज आप देना चाहते हो स्टूडेंट्स को, वो आप इस टेक्स्ट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। बस आप यहाँ पे टैप करना है, शेयर विथ योर क्लास, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, फॉर एग्जांपल कंप्लीट होमवर्क, फॉर एग्जांपल ये दे दिया आपने। और okay, just I think Rizwana miss call कर रहे हैं। All right, I think she's getting in some trouble. Okay, let me talk to her first of all. Hello, assalamu alaikum. Hello, walaikum assalam. So some of our teachers are facing trouble getting login. So let me check what is it is, what it is. Screenshot भेजा है। Okay. Okay. Primary. This one is. Okay. Sure. Okay. Hello. Please hold with me. This is Aftab. Please hold with me. I think some people are getting trouble in logging in, and they are seeing some images over there. So just let me check that one. Please hold for a second.
All right. So as I can see, Rizwana Miss, you can. I Yes, hope sir. I don't know. Rizwana Miss, yes. Can you see it now? Is anybody? Yes, sir, I can see. Yes, sir, I can see. Okay. Okay. All right. So I think all are unmuted now. So I just want to tell everyone here that we have started with the lessons. So we are going to create the class and then create the topics and then create the uh, and attach the assignments and test and live classes. So you can see this screen now. If you rotate your screen, your mobile screen, you can see it very clear, right? So there is a first of all we will see Google Classroom. पहले हम वो देखेंगे, फिर उसके बाद create class कैसे create करना है, topic कैसे create करना है, और फिर हर एक topic के अंदर अपने को material डालना है, content डालना है, फिर assignments देना है बच्चों को, फिर टेस्ट बनाना है, और फिर एंड में लाइव क्लास कैसे अपने हम इसको स्टार्ट करना है, वो भी देखेंगे। उसके बाद हम जूम ऐप के बारे में देखेंगे कि जूम ऐप का किस तरीके से यूज करना है इन कोलैबोरेशन विद गूगल क्लासरूम। तो दोनों जो आपके एप्लीकेशंस है, दोनों कोलैबोरेशन में काम करेंगे बच्चों तक आपके सारे लर्निंग मटेरियल कंटेंट्स को प्रोवाइड करने में। I hope all are listening to me, all are able to listen, all are able to hear me and understand me. Yes, sir. So now what I'm going to do, I'm going to mute all of you to avoid the chaos. All right, if you have any question, there is an option on your mobile phone in your application that raise your hands. You can go to the more option, right? You can see it on your mobile phone. Just beside the participant menu, there is a more menu. Just click on more menu and there is this option raise hand. Okay, so I will just unmute you and you can ask any questions, any doubt if you have during the lesson. All right, so let's go back now. Okay, so I was okay, I hope that you are able to see the screen now. Okay, so as you know, we have created let me show it once again. So we have created classes. We have created a class over here, create a class, and we have created this classroom for standard English. All right, so as I was telling you कि ये जो share with your class, ये जो आपका notification column है, जो जिसको यहाँ पे नाम दिया है stream, तो stream में आप जो है आपके updates बच्चों के लिए जो भी notice रहेगा, जो भी assignment रहेगा, जो भी आप post करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया कि कंप्लीट होमवर्क बाय टुमारो फॉर एग्जाम्पल, और इसको मैंने सेंड किया। ऊपर जो आपका सेंड वाला बटन है अटैच के बाजू में, उसको क्लिक करके सेंड करना है। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कंटेंट को कैसे बनाना है बेसिकली, ठीक है। तो फोर्थ स्टैंडर्ड हमने पहले क्लास को क्रिएट किया है। अब हमें क्लास के अंदर जो है वो पहले टॉपिक्स को क्रिएट करना है। अपने हायरार्की को जो है वो नहीं भूलना है, ये वाली हायरार्की अपनी पहले क्लास को क्रिएट करना है, फिर टॉपिक को क्रिएट करना है, राइट। सो we will create the topic. Just go to the plus icon over here, add icon over here, and you can see
there is a topic option. Click on the topic, and then give a topic. For example, this is an English subject, so I'll give grammar, for example, grammar, and add. All right. Now I have created topics. I'll create one more topic, for example, grammar. Let's email writing, for example. डाल देते हैं यहाँ पे email writing का topic. All right. So you are seeing that I am adding topic to the class 4 standard English. Okay. और एक ऐड करते हैं हाँ. तो अभी अगर सीक्वेंस को भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो. बस होल्ड करना है आपके टॉपिक को और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना. ठीक है. तो ग्रामर वाला टॉपिक को मैंने ऊपर ले लिया, ईमेल वाले टॉपिक को सेकंड पे लाना है. तो मींस आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने जो सीक्वेंस है उसको चेंज कर सकते हो. अभी आपको ग्रामर टॉपिक के अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर लेसन अपलोड करना है या लेसन क्रिएट करना है. तो आप ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मटेरियल ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन मटेरियल. तो हम पहले मटेरियल के ऊपर जाएंगे. मटेरियल के ऊपर आपको यहाँ पे टॉपिक टाइटल देना है मटेरियल का. फॉर एग्जांपल टेंसेस दे दिया. वॉच द वीडियो, फॉर एग्जांपल वॉच द वीडियो to understand about to learn about tenses. Alright. अभी देखिए इसके बाद का जो ऑप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अभी यहाँ पे टॉपिक दिया है, नो टॉपिक. तो हमको ये जो मटेरियल है वो स्पेसिफिक टॉपिक के लिए असाइन करना है. तो मैं टॉपिक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स दिखेंगे, ईमेल राइटिंग, ग्रामर, लेटर राइटिंग. सो मैं इसको ग्रामर के लिए असाइन कर रहा हूँ. ग्रामर पे टैप करना है और सेव करना है. ये स्पेसिफिक जो असाइनमेंट है, जो मटेरियल है वो ग्रामर टॉपिक के लिए वो असाइन हो गए. अभी इसके अंदर अगर आप सॉरी इसके अंदर आप मटेरियल है तो फिर आपको पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, पीपीटी, वीडियोस, everything you can attach. Just go to this upside on the above column, just beside the menu there is attach, there is a pin option attached. So here there are number of options. Okay, you can attach your drive, any document from your drive. Google Drive जो है यहाँ पे आपको 15 GB 30 GB का जो है वो स्टोरेज मिलता है. तो आप वहाँ पे जाके कोई अगर आपने फाइल वहाँ पे सेव की है तो वहाँ से आप यहाँ पे डाल सकते हो. कोई लिंक है, आउटसाइड लिंक है, आप हम देखेंगे कि जूम का जो आपका मीटिंग रहेगा, जो लाइव क्लासेस के लिए रहेगा, वो मीटिंग का लिंक जो है हम यहाँ पे डालेंगे. उसके बारे में हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह. तो और नेक्स्ट है आपकी फाइल. मतलब आपके मोबाइल फोन के अंदर कोई फाइल सेव है, कोई इमेज सेव है या फिर कोई वर्ड फाइल या पीपीटी कोई सेव की है, तो बस इस पे टैप करना है और आपको जैसे आप नॉर्मल कोई फाइल अपलोड करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, वैसे ही कॉलम दिखेगा. और फॉर एग्जांपल ये अटैचमेंट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कोई पीडीएफ. टेकिंग टाइम. कोई छोटी और सॉरी जस्ट अ सेकंड. Okay, some glitches over here, as you know. Alright, so attach में जाके कोई एक फाइल आपको अटैच कर सकते हो. फॉर एग्जांपल गैलरी में कोई अगर इमेज आपने, फॉर एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक का कोई अगर टॉपिक आपने अटैच किया है या कोई और चीज है, तो आप यहाँ पे जो है वो पिक लेके उसको अटैच कर सकते हैं.
It is taking time due to, I think, due to internet connectivity. All right, I'll tell you about the next options. By the way, file में आप जाके अलग अलग files पे attach कर सकते हो. You can take a live photo. Okay, for example, एक photo जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कोई एक बुक का फोटो है यहाँ पे. फॉर एग्जांपल इसको क्लिक किया और अपलोड किया. Let's see if it does upload. Okay, again it's taking time. All right, let's not. And also you can record your own video, by the way. Your live video you can record and you can post it as a material. All right, but I recommend that you can record video offline, and then if you can upload it from the file option, then it will be good. And now the last option is the new PDF. Okay, it is very interesting. Just a second, I think there are people who are waiting over here. I think. Okay, Rizwan Miss is calling again. Just.
Check. वालेकुम। हाँ मैडम, अभी हो रही क्या ज्वाइन, बताया क्या? नहीं, अभी बोला मैं वो मैसेज किया था। कितने लोग हैं जो अभी ज्वाइन नहीं हुए? कुछ प्राइमरी से है क्या, जूनियर कॉलेज से है, हाई स्कूल से? ज्वाइन किए ना? कौन कौन वेटिंग पे था फिर, नहीं ज्वाइन कर रहे थे? दिख रहा है ना आपको, स्क्रीन वगैरह दिख रही है ना? हेलो। हाँ, वही 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 वही। अभी स्क्रीन पे आपको नहीं दिख रहा है, वीडियो नहीं चालू दिख रहा है आपको स्क्रीन शेयर पे? वो इसका मोबाइल एप्लीकेशन का वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है? एक मिनट। अभी अभी देखो, आपको अभी फोन दिख रहा है क्या? जस्ट अ सेकंड ना। फोन या फिर आप कंप्यूटर का स्क्रीन दिख रहा है अभी? हमने निका जाओ All right teachers, I am back here again. There were some problems, कुछ दिक्कत हो रही थी कुछ टीचर्स को लॉगिन करने में, तो I think they are all the teachers from junior college and high school section, I think they are already here. Just a second. 17 participants are here. All right, so चलिए देखते हैं फिर वन बाय वन फिर से। तो हम थे यहाँ पे। जस्ट अ सेकंड, लेट मी समथिंग।
काय ग मी इकडे All right, people, just hold for a second. I have just stopped the screen sharing option. Just please hold. All right, so let's I'm back here, so we will start. All right, so as you can see कि हम देख रहे थे क्लास के अंदर कंटेंट को कैसे अपलोड करना है। हमने पहले तो टॉपिक को क्रिएट किया और उसके बाद क्लास को क्रिएट किया, फिर टॉपिक को क्रिएट किया, एंड नाउ वी आर क्रिएटिंग लेसन। Just a second, I think Maria Ansari ma'am had some queries. Okay. All right, so हमने टॉपिक को क्रिएट किया है और उसके बाद हमने लेसन को क्रिएट किया है। टाइटल, टेंसेस, टॉपिक हमने असाइन किया, ग्रामर टॉपिक, इस पर्टिकुलर लेसन को मटेरियल को हमने असाइन किया। फिर अटैचमेंट में जाके फाइल से अपलोड करना है, या फिर कोई लिंक, अगर यूट्यूब का वीडियो लिंक रहेगा या फिर कोई और लिंक रहेगा तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद ड्राइव है, गूगल ड्राइव पे अगर कोई अपनी वीडियो, अगर कोई डॉक्यूमेंट सेव किया है तो वो डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हो आपके लेसन का। उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक का कोई अगर बुक है तो आप टेक फोटो करके आपका जो भी फोटो रहेगा वो लाइव क्लिक करके आप इस पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है न्यू पीडीएफ, न्यू पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आपको एक ब्लैंक पेज, एक व्हाइट बोर्ड क्रिएट होता है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अगर कोई लेसन बनाना है आपको, यहाँ पे कोई एक व्हाइट बोर्ड के जरिए, जैसे आप क्लासरूम में पढ़ाते हो उस तरीके से आप यहाँ पे पढ़ा सकते हो, और इसका एक फाइल सेव करके आप उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है वो ये वाले ऑप्शंस आपके
जा ये बता All right. Yes. So जैसे हम देख रहे हैं कि टेंसेस, इसको हमको अभी 3 डॉट मेनू जो है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। अगर आपको अभी कोई मटेरियल नहीं है आपके पास, कोई अगर आप बाद में मटेरियल को डालना चाहते हो तो आप ड्राफ्ट एज ए ड्राफ्ट इसको सेव कर सकते हो और बाद में वापस इसको ऐसा कंप्लीट कर सकते हो इस पर्टिकुलर मटेरियल को। उसके बाद स्केड्यूल है, अगर आप ये पर्टिकुलर मटेरियल किसी और डेट के लिए, टाइम के लिए स्केड्यूल करना चाहते हैं तो उसको आप शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे कि शेड्यूल फॉर 3 अप्रैल या कोई फ्यूचर का डेट रहेगा वो और टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 2 बजे के लिए एंड देन फॉर 3 बजे के लिए 15 मिनट्स AM PM डाल के यहाँ पे आप इसको ओके करके पर्टिकुलर असाइनमेंट को, टॉपिक को, मटेरियल को, सारी चीजों को जो है आप शेड्यूल कर सकते हो अगली डेट के लिए। अगर आपको इमीडिएटली इसको असाइन करना है तो बस सेंड करना है, ये असाइन हो जाएगा। मैं सारे पार्टिसिपेंट से कहना चाहता हूं कि अगर आप गलती से मीटिंग से अगर बाहर हो गए हो, फॉर एग्जांपल कोई कॉल आया आपको या फिर गलती से बैक बटन प्रेस किया, तो वापस जो है वो उसी आईडी के जरिए आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ज्यादातर, ठीक है। बहुत इजी एप्लीकेशन है। ऑलराइट, तो जैसे आप देख सकते हैं कि अभी हम क्लासरूम के अंदर है, 4th स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है और हमने जो है वो ग्रामर के अंदर टेंसेस का एक मटेरियल जो है, एक लेसन जो है हमने यहाँ पे पोस्ट किया है। ऑलराइट, तो इसके बाद टेंसेस का मटेरियल पोस्ट किया है, हम फिर से जाते हैं ग्रामर टॉपिक क्या है, सॉरी हम अभी एक मटेरियल पोस्ट किया है, उसके बाद क्वेश्चन असाइनमेंट, ठीक है। तो असाइनमेंट को हम पहले देखते हैं कि कैसे करना है, because this is a very important part of this entire module। असाइनमेंट पे क्लिक करना है, टाइटल असाइनमेंट, फॉर एग्जांपल आपने होमवर्क दिया राइट ऐसे ऑन माय स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्ट्रक्शंस देना है पेरेंट्स को और बच्चों को भी कि राइट ऐसे ऑन माय स्कूल, for example in 100 to 150 words, write essay, click the photo of your writing and upload or and submit it here। ऑलराइट, सो इंस्ट्रक्शन आपने दे दिए। पॉइंट्स कितने पॉइंट्स के लिए है या फिर ये अनमार्क्ड है, इसको कोई मार्क्स नहीं है। अगर पॉइंट्स दे रहे हो तो फिर कितने पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल समझिए 20 पॉइंट्स के लिए, मतलब कि 20 मार्क्स के लिए आप इसको असाइन कर रहे हो। सेव किया। ड्यू डेट मतलब कि ये असाइनमेंट कब तक कंप्लीट करना है बच्चों को, तो आज मैं देखता हूँ 3 तारीख। अगर टाइम भी आपको असाइन करना है, टाइम असाइन कर सकते हो जैसे लास्ट टाइम किया था 3 तारीख। और लास्ट का जो ऑप्शन है टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप टॉपिक को सही से नहीं दोगे, असाइन नहीं करोगे पर्टिकुलर असाइनमेंट को, तो दिक्कत आएगी। फॉर एग्जांपल अभी ये मैं असाइन करता हूँ, चलो ठीक है ग्रामर पे असाइन करते हैं। और एक बार ग्रामर को असाइन किया यहाँ पे। अगर साथ में अगर आप कोई एक वीडियो या फिर आपका कोई एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो जहाँ पे आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि असाइन ऐसे को किस तरीके से राइट करना है, तो अगेन आप अटैच में जाके आपका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, फाइल सेंड कर सकते हो, या फिर कोई अगर और लिंक रहेगा तो वो सेंड कर सकते हो इस असाइनमेंट के साथ। अगर कुछ भी मटेरियल आप नहीं देना चाहते हो साथ में, तो डायरेक्टली आप इसको सेंड कर सकते हो या फिर शेड्यूल कर सकते हो, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। तो इसको सेंड किया, ऑन माय स्कूल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ग्रामर टॉपिक के अंदर हमने एक मटेरियल ऐड किया है और एक असाइनमेंट ऐड किया है, राइट।
अभी बच्चों को असाइनमेंट बच्चे किस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, उनको किस तरीके से दिखने वाला है और वो किस तरीके से यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और आई थिंक कि मैंने अभी वीडियो बनाया है, मैं आपको शेयर करूंगा। और वो सेम वीडियो जो है वो आप आपके पेरेंट्स को उनके ग्रुप के ऊपर शेयर कर सकते हो। आई थिंक कि मैंने वीडियो हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया है। उसी के साथ में और 2-3 अलग वीडियो अपलोड करूंगा स्पेसिफिकली फॉर पेरेंट्स के लिए, ताकि पेरेंट्स को भी इजी रहे और पेरेंट्स को भी एक ट्रेनिंग मिले कि किस तरीके से इन दोनों एप्स को जो है वो यूज करना है। तो ये हो गया आपका असाइनमेंट। उसके बाद क्वेश्चन, आप कोई एक क्वेश्चन बच्चों को यहाँ पे लिखने के लिए बोल सकते हो। कोई एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप यहाँ पे जो है वो उनको बच्चों को दे सकते हो, कोई एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली फॉर एग्जाम्पल। और बच्चे जो है वो यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों को राइटिंग में नहीं करना है और फोटो निकाल के इसको अपलोड नहीं करना है। बच्चों को यही इसी जगह पे जो है वो इसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको समझ लो 1 मार्क के लिए हमने असाइन किया है। जैसे कि ड्यू डेट, कोई ड्यू डेट नहीं दिया है। सेम इसी टॉपिक के लिए ग्रामर के लिए असाइन कर रहे हैं। उसके बाद ये शॉर्ट आंसर में इनको आंसर देना है या फिर मल्टीपल चॉइस में आंसर देना है। तो शॉर्ट आंसर में यहाँ पे स्टूडेंट्स के लॉगिन में छोटा कॉलम दिखेगा जहाँ पे बच्चे जो है वो टाइप कर सकते हैं उनका आंसर। या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप दे दो यहाँ पे, जैसे आप मल्टीपल चॉइस बता के 4 ऑप्शंस रहते हैं, कोई एक सही रहता है। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस, पहला ऑप्शन दे दिया मैंने दिल्ली, फिर दे दिया मुंबई, फिर दे दिया फॉर एग्जांपल समझ लो कोलकाता, देन दे दिया ऐड ऑप्शन, फिर दे दिया चेन्नई, ओके। ऐड ऑप्शन और तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये आपने क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया और स्टूडेंट कैन सी द क्लास समरी। सारे क्लास का रिपोर्ट जो है वो स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं नहीं चाहते, ये आप ही डिसाइड करता है। तो इसको ऑफ रखिएगा और इसको सेंड कर दीजिए। तो एक क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। उसके बाद असाइनमेंट देखा हमने, क्वेश्चन देखा, मटेरियल देखा, टॉपिक देखा। अब मैं आपको क्विज असाइनमेंट के बारे में बताऊंगा स्पेसिफिकली। क्विज असाइनमेंट अनफॉर्चुनेटली आपके गूगल क्लासरूम ऐप के अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट इसको आप गूगल क्रोम में आपको जाना है और सेम गूगल क्लासरूम सर्च करके वहां पे क्लिक, जो पहला ऑप्शन आएगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे गूगल क्विज, मतलब कि आप ऑनलाइन जो है वो टेस्ट को बना सकते हो, क्वेश्चंस आंसर। जैसे हमने भी एक सिंगल क्वेश्चन अभी ऐड किया था, वैसे ही आपको जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो क्विज असाइनमेंट के अंदर या टेस्ट असाइनमेंट के अंदर। जैसे अभी क्लासरूम द सेम लॉगिन इज अवेलेबल हियर, ठीक है। आई थिंक ये यस इट इज द सेम लॉगिन। और अब यहाँ पे आपको सेम यूजर इंटरफेस दिखाई दे रहा है, सेम यूजर इंटरफेस बस। ठीक है, क्लासेस और तो यहाँ पे क्लास वर्क में आना है और क्रिएट क्लास करना है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा क्विज असाइनमेंट, ठीक है, क्विज असाइनमेंट। अब क्विज असाइनमेंट को किस तरीके से करना है मैं आपको
मेरे डेस्कटॉप वाले जो वर्जन है, लैपटॉप वाला जो वर्जन है आपका ब्राउजर वाला, उससे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4th स्टैंडर्ड इंग्लिश में अपने क्लास वर्क, और इसके बाद I request you to rotate your screen so you can see it clearly. आप अपने मोबाइल स्क्रीन को रोटेट कर लेना ताकि आपको ये ब्राउजर वाला जो विंडो है वो अच्छे से दिखाई दे। क्रिएट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे क्विज असाइनमेंट है। आप ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट कर सकते हो आपके स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पे सेम फॉर्म है, फॉर एग्जांपल टेस्ट टाइटल देना है हमें यहाँ पे, टेस्ट ऑन, समझ लीजिए टेंसेस के ऊपर हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस, कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस, समझ लीजिए। अब इसके बाद जो है वो आपको ये जो यहाँ पे ब्लैंक क्विज दिखाई दे रहा है, इसको क्लोज नहीं करना है। ये सेम ऑप्शन आपको आपके मोबाइल के ब्राउजर के अंदर भी दिखेगा, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था मोबाइल के ब्राउजर के अंदर, बिकॉज ये जो ऑप्शन है आपके क्लासरूम ऐप के अंदर अवेलेबल नहीं है। आप इसको ब्लैंक क्विज जो है वो इस पे क्लिक करना है, एक नए विंडो के अंदर आपका ओपन होगा यहाँ पे भी और आपके मोबाइल के ब्राउजर के ऊपर भी। अब ब्लैंक क्विज को पहले रीनेम करो, टेस्ट टेस्ट ऑन टेंसेस, यहाँ पे भी इसको रीनेम करो। फॉर्म डिस्क्रिप्शन में आप डाल दो कन्वर्ट ऑल सेंटेंसेस इनटू पास्ट टेंस फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, आपको यहाँ पे क्वेश्चन डालना है, फॉर एग्जांपल I go to, समझ लीजिए I go to school, alright, I go to school, right, ये समझ लीजिए क्वेश्चन है आपका। और इसके बाद आपको यहाँ पे आप कोई एक फोटो अगर है, इमेज है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो बाजू में है वो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इस पे क्लिक करने के बाद आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस दिखाई देंगे यहाँ पे, क्या किस टाइप का क्वेश्चन आप देना चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस देना चाहते हैं, चेक बॉक्सेस मतलब मल्टीपल आंसर्स देना चाहते हैं, या फिर शॉर्ट आंसर, वन लाइन वन सेंटेंस आंसर अगर देना है बच्चों को, 2 सेंटेंस देना है, या फिर डिस्क्रिप्टिव आंसर है, बच्चे जो है वो यहाँ पे इसको टाइप करेंगे। उसके बाद अगर आप फाइल अपलोड बच्चों को देना चाहते हैं ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल एक लॉन्ग आंसर है, बच्चे उसको राइट डाउन करेंगे और फिर उसका पिक निकाल के जो है वो यहाँ से फाइल को अपलोड करेंगे, आपको फाइल यहाँ पे मिल जाएगी। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेसिकली, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई गो टू स्कूल, यहाँ पे ऑप्शन दे दो, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, समझ लीजिए, एंड आई गो टू स्कूल, ओके। सो अभी इसके बाद ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, मतलब कि कंपलसरी है बच्चों को सॉल्व करना या ऑप्शनल है, तो ये इस टैब से आप डिसाइड कर सकते हो रिक्वायर्ड है या ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, आंसर की, मतलब इसका आंसर भी आपको असाइन करना है कि आंसर क्या है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे, कितने मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए है। उसके बाद आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, करेक्ट। देन यहाँ पे एक ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, ऐड आंसर फीडबैक का, इस पे क्लिक करना है और इनकरेक्ट आंसर अगर बच्चे देते हैं तो उनको क्या फीडबैक जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप समझ लो, आपने बोल दिया कि आपने दे दिया फीडबैक यहाँ पे कि प्लीज प्रैक्टिस टेंसेस, और आपने उसको एक्सप्लेन किया फॉर एग्जांपल के व्हाई इट इज अ रॉन्ग आंसर और राइट आंसर क्या है, इसका एक हिंट आपने यहाँ पे दे दिया, तो आप वो यहाँ पे दे सकते हो। या फिर कोई अगर लिंक है एक्सटर्नल, कोई यूट्यूब का वीडियो है, तो आप इन 2 ऑप्शन के जरिए दे सकते हो कि ताकि वो बच्चे जाए, देखे, पढ़े और वापस से आके इसको सॉल्व करें। करेक्ट आंसर रहेगा तो करेक्ट आंसर, क्यों करेक्ट आंसर है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे एक सेंटेंस में यहाँ पे दे सकते हो, फिर सेव कर सकते हो इसको। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। ऐसे ही आपको जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ऐड करना है, ऐड क्वेश्चन टैब पे क्लिक करके। ये बाकी के सारे ऑप्शन से इंपोर्ट क्वेश्चंस आपके दूसरे किसी टेस्ट आपने बनाया है और वहां से आपको कॉपी करना है क्वेश्चंस, तो आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इस टेस्ट का,
और एक अगर आपको सेक्शन बनाना है तो आप सेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। एक ही टेस्ट के अंदर आप अलग अलग सेक्शंस, फॉर एग्जांपल सेक्शन ए प्रोज, सेक्शन बी पोएट्री, सेक्शन सी राइटिंग, एक्सेट्रा आप जो यहाँ पे सेक्शन बना सकते हैं। जैसे कि ए भी ऑप्शन है आपका सेक्शन बनाने के लिए, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 आपने दे दिया, सेक्शन 1 आपने दे दिया, यहाँ पे सेक्शन 2 दे दिया, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके एंटायर गूगल क्लासरूम का, हाउ टू क्रिएट ऑनलाइन टेस्ट। जो भी बच्चों के रिस्पॉन्सेस आएंगे इस रिस्पॉन्सेस टैब के अंदर आपको दिखाई देंगे एक एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है। और एक एक्सेल शीट जो है वो आपकी गूगल क्राउड वाले एक्सेल शीट रहेगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्रिएट एक्सेल शीट पे जाना है और यहाँ पे डाउनलोड रिस्पॉन्सेस, मतलब कि ऑलरेडी जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक एक्सेल शीट बनने वाली है बच्चों के आंसर्स की, रिस्पॉन्सेस की, वो आप डायरेक्टली डाउनलोड करके उनके आंसर्स को चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली उसको व्यू भी कर सकते हो, देख भी सकते हो और आपको मिल जाएगा। एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस इसको हमेशा ऑन रखना है। अगर आप समझ लीजिए जब भी अगर आप कुछ टेस्ट को बंद करना है तो इसको क्लोज कीजिएगा, वो लिंक ओपन नहीं होगी, बच्चों के आंसर्स रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेस्ट का। लास्ट में आपको इसको सेंड करना है और सेंड करते वक्त इसका यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आएंगे इसको इग्नोर करना है। लिंक वगैरह शेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको जो है वो क्लासरूम के अपने ऐप के अंदर हम डाल रहे हैं इसको, तो इसकी जरूरत अभी तो हमको नहीं है। अगर आप सेपरेट कोई टेस्ट बनाते हो आउट ऑफ क्लासरूम तो आप इसका लिंक जो है वो बच्चों पेरेंट्स को सेंड कर सकते हो, वो जाके वहां से उसको सॉल्व कर सकते हैं टेस्ट को, ठीक है। इसके बाद इसको क्लोज करना है, जस्ट अ सेकंड, इसको क्लोज करना है और आपके वापस से आपके वो वाले टैब में आना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे अभी इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लैंक क्विज जो था वो अभी बन गया है टेंसेस का क्विज, राइट। ग्रामर, ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है, राइट। एडिट, ऑलराइट, sorry, not this one. I think save name. टेस्ट ऑन टेंसेस, इसको एडिट असाइनमेंट करना है। अगर आप समझो ड्राफ्ट में सेव करते हो तो आपको ड्राफ्ट्स में दिखेगा वो। अभी यहाँ पे असाइन का ऑप्शन है, थोड़े यहाँ के ऑप्शंस अपन देख लेते हैं। 4th स्टैंडर्ड का आपका क्लास है, उसके लिए आपने असाइन किया है इसको। 5th के लिए भी करना चाहते हो आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग क्लासेस के लिए सेम असाइनमेंट आप दे सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए देना चाहते हैं असाइनमेंट या पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स वीक है तो बस उन्हीं के लिए अगर स्पेशल अगर कोई टेस्ट आप देना चाहते हैं या कोई असाइनमेंट देना चाहते हैं तो आप यहाँ से उन बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हैं। उन बच्चों की सारी लिस्ट जो है वो आपको यहाँ से नीचे दिखाई देगी, उसमें से बच्चों को सिलेक्ट करके, स्टूडेंट को सिलेक्ट करके आपको स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक असाइनमेंट और टेस्ट देना है। कितने पॉइंट्स के लिए है? 10 पॉइंट्स के लिए मान लीजिएगा ये असाइनमेंट है। ड्यू डेट, कब तक ये कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक टाइम टेबल बना लिया टेस्ट के लिए और आज आपका इंग्लिश का टेस्ट आपने रखा है 10:30 से 11 के बीच में, तो 11 का टाइम आप देंगे ड्यू डेट का टाइम। 2 तारीख समझ लीजिए, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 14। अब देखिए यहाँ पे जो टाइमिंग है वो 24 आवर्स का है, तो फिर थोड़ा सा आप इसका ख्याल रखिएगा कि 24 आवर्स में ही आपको जो है वो यहाँ पे टाइमिंग्स देने हैं। और कौन से टॉपिक के लिए आप इस टेस्ट ऑन टेंसेस को असाइन कर रहे हैं, तो ग्रामर का टॉपिक इसके लिए असाइन कर रहे हैं। अब ये रूब्रिक जो ऑप्शन है इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पे इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ज्यादातर, क्योंकि हमने पॉइंट्स जो रूब्रिक जो है वो आपके ग्रेडिंग सिस्टम से रिलेटेड है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उतना काफी है फिलहाल के लिए। मैं इसको अलग से वीडियो में बनाऊंगा रूब्रिक के ताल्लुकात से, ताकि आप रूब्रिक क्या है इसको भी देख सकते हैं। तो इसको असाइन करने के लिए अभी अगर आप इसको एज अ टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ड्यू डेट है आपका 2 अप्रैल 14 मतलब के 2 बजे का, तो इसको शेड्यूल करना है 2 अप्रैल 2 अप्रैल। आधे घंटे का अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो फिर आपको 1:30 बजे का देना पड़ेगा, राइट। सो 13:30
और इसको शेड्यूल किया, और अब बच्चों को इसका नोटिफिकेशन भी जाएगा, उनके मोबाइल फोन के ऊपर नोटिफिकेशंस जाएंगे, और ना कि बस मोबाइल फोन के ऊपर, बट क्लासरूम वेबसाइट पे जाके अगर बच्चों के पास, स्टूडेंट के पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड फॉर द ऐप इटसेल्फ, राइट, बिकॉज ऐप का एक्सेस ज्यादातर रहता है बच्चों के पास, मोबाइल फोन का एक्सेस, सॉरी, कंप्यूटर्स भी रहते हैं, मोबाइल फोन भी है, तो हम उसके ताल्लुक से देखें, ठीक है। तो टेस्ट इस तरीके से हमको यहाँ पे जो है वो क्रिएट करना है, राइट। अब इसके बाद देखते हैं, हमारा नोटपैड टेस्ट क्रिएट किया, अब लाइव क्लास, ठीक है ना। लाइव क्लास को देखने से पहले हम देखेंगे कि जूम ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, साइन इन करना है। जैसे आपने ऑलरेडी साइन इन किया है, राइट, तो मैं आपको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से जूम को इस्तेमाल करना है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे शेयर आपके स्क्रीन के ऊपर, राइट, आपके स्क्रीन के ऊपर, चलो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। जूम पे जाना है आपको, राइट, आपका कुछ लॉगिन इस तरीके से दिखाई देगा। अभी आपको मीटिंग शेड्यूल करना है, तो शेड्यूल पे टैप करना है। उसके बाद टॉपिक बहुत ही प्रिसाइज और मतलब प्रॉपर रहना चाहिए कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो समझ लेगी आपका जो लाइव लेसन होने वाला है वो कौन से टॉपिक पे होने वाला है। फॉर एग्जांपल 4th स्टैंडर्ड इंग्लिश लेसन 1, 4th स्टैंडर्ड इंग्लिश लेसन 1, राइट। उसके बाद डेट कब लेने वाले आप, 3 अप्रैल को, और टाइम, स्पेसिफिक टाइम 2 बजे समझ लीजिएगा। टाइम जोन को चेंज नहीं करना है, इंडिया ही रखना है। अभी अगर आप रोज 2 बजे बच्चों को अवेलेबल हो रहे हो, बच्चों के साथ अगर आप रोज 2 बजे लाइव जा रहे हो, लाइव क्लासेस ले रहे हो, तो रिपीट ऑप्शन एवरीडे रखना है। अगर आप एक ही बार ले रहे हो तो एक ही बार ले रहे हो तो नन करना है। एवरीडे रख रहे हो तो आपका ये एवरीडे कब खत्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि 14 अप्रैल को हमारा जो है वो खत्म हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है आपका डेली, ठीक है ना, इसे कर लिया। अब ये जो ऑप्शन है यूज पर्सनल मीटिंग आईडी PMI, इसको ऑन रखना है, ताकि अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो फिर वो हर मीटिंग के लिए जो है वो अलग अलग आईडी आपको देना पड़ेगा, आपको। तो इसको ऑन रखते हैं। अब ये जो आईडी है 2374362343, ये आपका पर्सनल मीटिंग आईडी है। बस ये एक मीटिंग आईडी आपको पेरेंट्स को शेयर करना है। वो मीटिंग आईडी को उनके ऐप के अंदर पेरेंट्स एंटर करेंगे और आपकी क्लास को ज्वाइन करेंगे। मीटिंग पासवर्ड, अगर आपको कोई पासवर्ड रखना है मीटिंग के लिए तो आप पासवर्ड भी रख सकते हो, ताकि दूसरे बच्चे जो है वो ज्वाइन ना करें, तो उसके लिए पासवर्ड भी आप रख सकते हो। होस्ट वीडियो ऑन, पार्टिसिपेंट वीडियोस ऑन, तो ये दोनों वीडियोस को ऑन रखना है। आपका वीडियो भी बच्चे देखना चाहिए, आपको भी देखने चाहिए बच्चे, और आप भी बच्चों को देखना चाहिए कि क्या करें बच्चे। उसके बाद ऑडियो ऑप्शन जो है वो टेलीफोन एंड डिवाइस ऑडियो, ये दोनों ऐसे रखना है, टेलीफोन ऑडियो एंड डिवाइस ऑडियो। उसके बाद एडवांस ऑप्शन में जाना है। वेटिंग रूम एनेबल नहीं करना है, ऑफ रखना है इसको। अलाउ ज्वाइन बिफोर होस्ट, इसको ऑफ रखना है। क्यों? क्योंकि आपके आने से पहले बच्चे वहां पे आके कम्युनिकेशन, डिस्कशन, चैटिंग कर सकते हैं। जैसे हम रेगुलर क्लासरूम में जाने से पहले बच्चे बातचीत करते रहते हैं, थोड़ा मस्ती करते रहते हैं, तो सेम चीज यहाँ पे भी हो सकती है, तो इसको ऑफ रखना है। बस उसी टाइम के ऊपर जो है वो बच्चे ऑनलाइन जाएंगे। अलाउ ज्वाइन बिफोर होस्ट, और वेटिंग रूम को ऑन रखेंगे, क्योंकि बच्चे बाद में भी एंटर कर सकते हैं, तो फिर ऐड करने के लिए बच्चों को वेटिंग रूम को ऑन रखना है। और ऐड टू कैलेंडर, इसको ऑफ रखेंगे तो भी चलेगा। ये कैलेंडर मतलब कि गूगल कैलेंडर जो सर्विस है गूगल का, यहाँ पे ये स्पेसिफिकली आपका मीटिंग शेड्यूल हो जाएगा और उसका रिमाइंडर भी आपको आएगा, ठीक है। और वो रिमाइंडर आपको जूम एप्लीकेशन से भी मिल सकता है और वहां से भी मिल सकता है, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको ऑफ रखते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है मीटिंग शेड्यूल करने के लिए, मतलब ऑनलाइन लाइव क्लास आपका शेड्यूल करने के लिए। इसको डन करना है। डन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड इनवाइटीज, इसको साइड में टैप करके बाहर निकलना है और फिर आपको ये वाला पेज दिखेगा, यहाँ पे ऐड इनवाइटीज पे क्लिक करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
नीचे जो है वो लास्ट में आपको दिख रहा है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। कॉपी टू क्लिपबोर्ड पे क्लिक करना है, एक लिंक बनेगी, आपका एक मैसेज बनेगा, कस्टम मैसेज बनेगा, और वो मैसेज जो है वो आपको जाना है मोबाइल फोन के अंदर आपके क्लासरूम में। अभी क्लासरूम के अंदर हमें लाइव क्लास को असाइन करना है, राइट? तो हम लाइव क्लास कैसे असाइन करेंगे? ऐड पे जाएंगे और मटेरियल पे जाएंगे। मटेरियल पे जाओ या असाइनमेंट पे जाओ, नॉट एन इश्यू, ठीक है। असाइनमेंट में जाएंगे तो भी बेहतर रहेगा, क्योंकि असाइनमेंट थोड़ा सीरियसली लेते हैं बच्चे। और अभी यहाँ पे आपको ऐड करना है लाइव क्लास ऑन इंग्लिश, ठीक है। लाइव क्लास ऑन इंग्लिश लेसन 1 लाइव क्लास, समझ लीजिए, ठीक है। आपने अनमार्क्ड किया, इसको कोई मार्क्स नहीं है क्योंकि लाइव क्लास है। उसके बाद ड्यू डेट कुछ देने की जरूरत नहीं है, या फिर आप दे दो आपका जो भी आपने टाइम शेड्यूल किया है मीटिंग का, 3 अप्रैल, ठीक है। टाइम कुछ जो भी आपने टाइम दिया होगा वो टाइम, ठीक है। उसके बाद टॉपिक, कौन से टॉपिक के लिए आप असाइन कर रहे हो, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर टॉपिक के लिए आपने फॉर एग्जांपल असाइन किया, सेव किया, ठीक है। और अभी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जो वहां से आपने कॉपी किया था, कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया था, यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, तो आपको जो है वो पूरा मैसेज मिल जाएगा। लेसन 1 लाइव क्लास, आफ्ताब मुल्ला इज इनवाइटिंग यू, शेड्यूल क्लास मीटिंग। थोड़ा इसको एडिट कर लेना, ये वाले सेंटेंस को काट लेना, ठीक है। और ये जो लिंक है यहाँ पे, ठीक है ना, अब आपने वो वहां से कॉपी टू क्लिपबोर्ड किया, आप यहाँ पे पेस्ट किया, मीटिंग आईडी भी यहाँ पे आ गया है। अब ये जो लिंक है, इन लिंक को सिलेक्ट करना है और इस लिंक को कॉपी करना है। अब कॉपी करके ऐड अटैच में जाना है और यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका जूम का जो आईडी है उसको पेस्ट करना है और ऐड करना है, ठीक है। अभी जो है वो आपका मटेरियल ऐड हो गया, लॉन्च मीटिंग with Zoom. All right, just a second. Okay. Just a second, I think screen sharing off हुआ है, just a second. Let me connect it again. All right, तो हम देख रहे थे लाइव क्लास को कैसे शेड्यूल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लॉन्च जो ये वाला लिंक था उसको कॉपी किया, अटैच में गए, लिंक किया, और यहाँ पे सेम जो कॉपी किया हुआ है उसको, लिंक है उसको पेस्ट किया, और जिसको आप शेड्यूल कर सकते हो या फिर इमीडिएटली सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो देख लीजिए अभी क्लासरूम के अंदर, सॉरी हम देखते हैं क्लासेस के अंदर, ये आपका डैशबोर्ड है। आपके 4th स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासरूम में हम थे, हमने असाइनमेंट बनाया राइट ऐसे ऑन माय स्कूल, और हमने एक असाइनमेंट और दे दिया लाइव क्लास ऑन इंग्लिश, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद बच्चों को जो है वो सारे असाइनमेंट्स जो है वो दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी न्यू असाइनमेंट है लाइव क्लास ऑन इंग्लिश, इस पर क्लिक किया। अभी सॉरी, अभी ये जो हमारा पैटर्न लॉगिन है वो टीचर लॉगिन है, बच्चों के लॉगिन के अंदर ये अलग तरीके से दिखेगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप भी देख लेना उस वीडियो को और पेरेंट्स से भी शेयर करना ताकि वो भी जान जाए। मीटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जूम का ऑप्शन है, जूम पे क्लिक करने के बाद उनकी मीटिंग जो, जैसे अभी आपने मीटिंग ओपन की है वैसे उनकी मीटिंग जो है वो आपका लाइव क्लास ओपन होगा। आप जैसे अभी मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ वैसे ही जो है वो आप स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब उसको करने के लिए देखिए
बेसिकली मैं इस मीटिंग को लीव करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, उस मीटिंग को स्टार्ट मीटिंग करने के बाद अभी आपको मीटिंग, आपको क्लास किस तरीके से कंडक्ट करना है, लाइव क्लास, ठीक है। तो जैसे भी मेरा वीडियो स्टॉप कर लेता हूं मैं, आप अभी अपना वीडियो स्टार्ट करना है आपको, आपका वीडियो। उसके बाद आपको आपके पार्टिसिपेंट्स दिखाई देंगे, ठीक है ना। अब ये समझो नीचे अगर जाता है, अगर कोई आपको ऑप्शंस मेनू नहीं दिख रहे तो कहीं भी टैप कर लीजिएगा, मेनू आ जाएंगे, ठीक है। ये भी टैप कर लीजिए, मेनू आ जाएंगे। जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स जो आपको ज्वाइन कर रहे हैं वो आपको पार्टिसिपेंट्स कॉलम के अंदर दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक मैं दिख रहा हूँ, और जो भी यहाँ पे रहेंगे वो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, मतलब कि आपके स्टूडेंट्स जो है वो आपके यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद मोर ऑप्शन के अंदर जैसे है डिस्कनेक्ट ऑडियो, मीटिंग सेटिंग्स, ठीक है। मीटिंग सेटिंग्स में आप जाके अलग अलग सेटिंग्स है मीटिंग के, ठीक है। पुट पार्टिसिपेंट्स इन वेटिंग लिस्ट है। उसके बाद लॉक मीटिंग है, मतलब कि लॉक शेयर है। मीटिंग को आप लॉक कर सकते हो, मतलब कि इस टाइम के बाद कोई और अंदर नहीं आ सकेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स को बाहर ही रुकना पड़ेगा। म्यूट ऑन एंट्री, बच्चों की जो आने के साथ ही जो है वो एंट्री एंट्री के साथ बच्चों का ऑडियो जो है वो अगर आपको म्यूट करना है, जैसे मैंने आपको ऑडियो म्यूट किया था, वैसे आप इसको म्यूट कर सकते हो, ताकि बच्चे ज़्यादा मस्ती ना करें और ज़्यादा बातचीत ना करें, ठीक है। उसके बाद allow participants to chat with everyone, with host everyone publicly, with host no one, ठीक है ना। तो इसको आप होस्ट ओनली करके रखना है, ताकि बच्चे जो है वो आपस में डिस्कशन ना करें, ओनली टीचर के साथ डिस्कशन करें, राइट। उसके बाद शो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट, जिसके पास वीडियो नहीं है उनको भी जो है आप देख सकते हैं। शो नेम व्हेन पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन, इसको ऑन रखना है। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू रीनेम, तो इसको ऑफ रखना है, ताकि बच्चे जो है अलग अलग नाम से ज्वाइन ना करे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका एहतियात रखना है हमें, ठीक है। तो ये सेटिंग्स है मीटिंग के। उसके बाद जो है शेयर का ऑप्शन, आप यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर सकते हो, मतलब आपकी मोबाइल की स्क्रीन हो या फिर आपके लैपटॉप की, डेस्कटॉप की स्क्रीन हो, उसको दे सकते हो। वेब यूआरएल कोई आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद फोटो, डॉक्यूमेंट, बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हियर, राइट। कोई अगर फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया आपने, अलाउ किया इसको, जैसे आपने रेगुलर आप डिवाइस स्टोरेज में जाके आपके जो भी फाइल्स रहेंगे आप एक्सेस करके, जाके भी फाइल रहेगी आप उसको अटैच कर सकते हो, आप भेज सकते हो। बच्चे जो इसको वहाँ पे उनके लॉगिन में ओपन करेंगे। उसके बाद स्क्रीन शेयरिंग है। शेयर व्हाइट बोर्ड है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक व्हाइट बोर्ड देखा था, वैसे ही ये व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे इसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप शेयर। तो आपको इस तरीके से जो है वो ऑनलाइन क्लास को जो है वो कंडक्ट करना है, राइट। अभी ये माइक्रोफोन म्यूटेड है तो इसलिए ऑलराइट। तो इस तरीके से आपको आपका लाइव क्लास जो है वो जूम के थ्रू क्रिएट करना है। पहले आपको लिंक देना है एज एन असाइनमेंट, एज अ मटेरियल आपके गूगल क्लासरूम के अंदर, और फिर जो है वो उस असाइनमेंट के अंदर आपको इसका लिंक देना है, और आपको उस टाइम में जो टाइम आपने डिजिग्नेट किया है, दिया है, उस टाइम पे आपको यू कैन बी ऑनलाइन, योर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आल्सो कैन बी ऑनलाइन, एंड यू कैन स्टार्ट योर लर्निंग, स्टार्ट योर टीचिंग, ऑलराइट। तो I think I have completed all the parts, ठीक है। साइन इन कैसे करना है जो हमने देखा, मीटिंग क्रिएट कैसे करना है, शेयर स्क्रीन कैसे करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और बाकी सारी चीजें, इमेजेस वगैरह अपलोड कैसे करना है, ये हमने देखा। आई होप के मैंने आई हैव ट्राइड टू कंप्लीट ऑल दी पार्ट्स विच आई हैव प्लान्ड। अगर कोई चीज छूट रही है, रह रही है, तो फिर डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल है इन सारी चीजों को लेके, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसको भी देख सकते हैं, ऑलराइट। तो यूज कीजिएगा गूगल क्लासरूम, और गूगल क्लासरूम और यूटिलाइज कीजिएगा, ये फ्री टाइम है, और इवन आफ्टर दिस लॉकडाउन we can also use it on a regular basis पे हम इसको
यूज कर सकते हैं, राइट। मैं भी ये सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, तो अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, या कोई ग्रुप चैट कर। म्यूट करता हूँ सभी को। यू कैन जस्ट रेज योर हैंड इफ यू वांट टू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर हैंड, और यू कैन use the chat box to chat or to send a message. So I hope that you have enjoyed this small session. By the way, थोड़ा सा अगर लंबा हो गया तो माफी चाहता हूँ, because I have tried to complete all the points related to classroom as well as related to Zoom. ठीक है। आई होप के आप कंटेंट पे अभी फोकस करो। आई सजेस्ट यू कि आप कंटेंट पे फोकस करो। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल क्लासरूम के अंदर जो भी असाइनमेंट्स है, जो भी मटेरियल है, उसको बनाओ, कुछ टॉपिक्स को बनाओ, और फिर जो है वो क्लासरूम। अच्छा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। क्लासरूम के अंदर जो लास्ट का आपका ऑप्शन है यहाँ पे क्लास वर्क के बाद, पीपल वाला, ठीक है, यहाँ पे आपको, सॉरी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले तो। ऑलराइट, तो आपके मोबाइल फोन के अंदर और एज वेल एज आपके डेस्कटॉप के अंदर अभी आपको बच्चों को जो है वो स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है, राइट। स्टूडेंट्स को इनवाइट करना है, तो स्ट्रीम, क्लास वर्क और पीपल, इसके बाद जो है वो ऐड स्टूडेंट्स का ऑप्शन है, राइट। तो ये जो क्लास कोड है इसको आप राइट डाउन करके रखना, और इस क्लास कोड को शेयर करना आपके स्टूडेंट्स के साथ, उनके पेरेंट्स ग्रुप के ऊपर। और एक क्लास कोड जो है वो हर एक क्लास का अलग अलग रहने वाला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हम 4th स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर है, वैसे ही 5th स्टैंडर्ड जो अभी क्लास बनाया है ये इजी इंग्लिश क्लास है, 12th केमिस्ट्री क्लास है, तो फिर इन हर एक क्लास का जो है अलग अलग क्लास कोड है। तो हर एक क्लास कोड को आपको राइट डाउन करके रखो, और उसको फिर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ आपके पेरेंट्स ग्रुप के ऊपर इसको शेयर करो, सो दे कैन ज्वाइन द क्लास। ज्वाइन करने के लिए उनकी इजी टेक्निक है, प्लस पे क्लिक करना है और ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना है, और जो कोड वहां पे आपने प्रोवाइड किया है उनको यहाँ पे एंटर करना है और ज्वाइन करना है। बस उतना एक क्लास वो ज्वाइन कर सकेंगे, दूसरा कोड देंगे तो दूसरा क्लास भी वो ज्वाइन कर सकेंगे। ऑलराइट, so I hope that I have tried to complete the all parts. अगर कुछ चीजें रह जाती है तो I will definitely available here, and I will try to send more videos and more information about these two applications, right? So yes, right. So now it's time to take leave. I hope that you understood it well. ठीक है, थोड़ा सा खुद से एक्सप्लोर करो आप दोनों एप्लीकेशंस को, तो अच्छा रहेगा। थोड़ा आप अगर खुद से एक्सप्लोर करेंगे इस एप्लीकेशन को तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ऑलराइट, सो आई एम टेकिंग योर लीव राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, वक्त दिया। I wish you all the best for your e-learning journey. Thank you very much, and stay home, stay healthy, stay safe. Thank you.